Uttarakhand, where life today depends on nature. Proper management of these natural resources is the dire necessity of this place. With these objectives of sustainable management of these natural resources, started Uttarakhand Decentralized Watershed Development Project, Gramya. With the objective of providing expansion to the natural resource management activities of Gramya, SLEM sub-project was conceived and implemented. Controlling soil erosion is a big challenge in the hill areas. Life and property is under continuous threat by the landslides resulting from lashing rainwaters. Diversion drains have been constructed by the project to check the threat of landslides in the mountain slopes. These drains have diverted runoff safely, and now the land beneath are safe. Maximum land erosions in the hills are caused by the seasonal flash floods in streams and nalas. To check such erosion, vegetative check dams have been constructed in the first order streams. Such treatments have resulted in increased vegetation in the course of streams and reduction in washing away of topsoil. Contour trenches dug on these mountain slopes collect the rainwater and arrest the silt flowing down. Besides these, the fodder grasses and agrave plants on either side of these trenches act as filter strip and checks the soil losses. In the mid-reaches of the stream, dry stone check dams have proved to be important measures in bringing down the runoff velocity below the erodible limits in addition to siltation. Vegetation soon grows out on the silt collected behind these check dams, checking the possibility of erosions in future. पूरा इलाका था, पूरा सिल्ट हो रहा था, पूरा धंसने वाला इलाका था और प्रतिवर्ष जो है नाला काटते काटते नीचे को ले जा रहा था, जिससे नाले किनारे सब खिसक रहा था। इस नदी में जो है पूरे चेक डैम बनाए गए, उससे जो है पूरे इलाके का जो है धंसना भी बंद हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जो है इसके किनारे किनारे झाड़ियाँ भी उगने लग गई हैं और उससे जो है पूरा इलाका मजबूत हो गया है। चेक डैम की बन जाने से हमारा पूरा इलाका सुरक्षित है। अब हमें कोई चिंता नहीं है, बारिश में भी धंसने की कोई ऐसी संभावना नहीं है, बहुत अच्छा हो गया है। इससे दूसरा फ़ायदा वो हुआ, इससे जो है सिल्टे इकट्ठा हुआ। सिल्टे इकट्ठे से नीचे हमारे पानी के सोर्सेज हैं, उससे गांव के लोग पानी पीते थे। अब वो सोर्स भी जैसे बंद हो गए थे गर्मियों के दिनों में, अब जो है गर्मियों में सदा जो है उन सोर्स में पानी आता है। Gabion structures built at the landslide-prone sites have been very successful in stabilizing these mountain slopes, providing safety to the habitation of the area. जब से सुरक्षा दीवार बनी तब से हमारे मकान के लिए, बच्चों के लिए आराम हुआ है। चेक डैम बने हैं जगह जगह पर, तब से सब आराम से रह रहे हैं। ज़मीन का ढलान बहाव सब एक गधेरों में जो नाले हैं आराम से हो रहे हैं। नीचे पीछे साइड हमारा मकान है, वो अगर चेक डैम नहीं होता तो पूरा मकान पीछे साइड से भी बह जाता हमारा। Afforestation activity by the project has been an important landmark in the area of natural resource management. हमने 11 हेक्टेयर में वनीकरण बनाया, जिसमें चारा पत्ती के प्रजाति के पौधे वो लगाए गए हैं और जो अभी जो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, जिसमें 2 प्रजाति ऐसी हैं जो बांज और उदीस, जिससे हमारी पूरी भूमि को नमी इत्यादि मिलती है। टीमल है, भींगल है और ये चीज़ हमने उसमें जो लगा के वो हमारे दुधारू गायों के लिए बहुत लाभदायक है। Efforts made for natural regeneration of oak through assisted natural regeneration
have now started showing results. हमने खंतियाँ भी बनाई हैं। खंतियाँ बनाने से भी बरसात का पानी खंतियों में रुकता है, हमारे पेड़ पौधों को हरा मिला है, नमी मिली है। तारबाड़ भी की है कि गाय बच्चे उसके छोटे पेड़ों के क्यों नुकसान नहीं करेंगे करके, तो वो पेड़ भी अब हमारे बड़े हो गए हैं, तो हमारा जंगल हरा भरा हो गया। Forest regions of Uttarakhand are natural abodes of many medicinal and aromatic plant species. With the objectives of reducing the pressures of their overexploitation and to promote their commercial production, nurseries of these medicinal and aromatic plant species have been established. In the field of natural resource management, biodiversity conservation activities in the forest regions, with the involvement of Van Panchayats, has been an innovative effort by the project. Afforestation activities in the reserve forests and Van Panchayat areas have been undertaken in accordance with the work plans of the Forest Department. वन विभाग द्वारा जलागम के साथ हमने कन्वर्जेंस किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे वन पंचायत और हमारा जो रिजर्व फॉरेस्ट है उनका सुदृढ़ीकरण करना था। इसमें मुख्य रूप से हमने एक तो जैव विविधता सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जैव विविधता जो हमारा अधिनियम है उसमें हमने वन पंचायतों में जैव विविधता ग्रुप्स बनाए हैं ताकि जितना भी वहाँ के रिसोर्सेस है उसको हम लोग वैल्यू एडिशन करके उसको मार्केटिंग कर सकें। जितने भी हमारे वन पंचायत क्षेत्र की वन पंचायत है उनमें जलागम के माध्यम से उनको जो सुरक्षा टूल्स होते हैं वनाग्नि के उनको हमने वितरित किया है और साथ ही में उनके ग्रुप्स बना के उनको वनाग्नि सुरक्षा के हेतु लगाया गया है। साथ ही में जो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र है उसमें हम लोगों ने सॉइल वाटर कंजर्वेशन वर्क और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है प्लांटेशंस भी जो है अप्रूव्ड जो अनुमोदित प्लान है उसके अंतर्गत हमने ये कार्य यहाँ पे जलागम के माध्यम से किया गया। Afforestation activities involving the biodiversity groups have been an important endeavor of the project in the area of participatory natural resource management. इस समूह का नाम जैव विविधता समूह जलना नील पहाड़ी है। इसमें 7 लोग सदस्य हैं। ये जो हमारी प्राकृतिक संपदा है इसको बरकरार रखने के लिए इस ग्रुप का सलेम परियोजना के अंतर्गत चयन किया गया। इस ग्रुप को बनाने में वन विभाग का भी सहयोग रहा। इस समय हम लोग जैव विविधता के अंतर्गत इसका प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं और वनों को अग्नि से बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और बचा रहे हैं अपनी अपनी एरियाओं से। पौधरोपण का कार्य हम लोग कर रहे हैं और वन्यजीव संरक्षण का कार्य हम लोग कर रहे हैं और इसमें हम लोग ईंधन वगैरह एक किस प्रकार गांव वालों को बांटना चाहिए वैसे बांट रहे हैं। परियोजना समाप्ति के बाद जो लोग यहाँ पर कार्य देखने आएंगे तो हम उनसे पैसा लेंगे और इस समूह के माध्यम से इस कार्य को आगे को बढ़ाएंगे। Fuel wood is an important source of fuel in the mountain regions. Therefore, the forests are under continuous pressure for their fuel woods. To reduce this pressure, the project has promoted production and use of briquettes made out of pine needles. Collection of the inflammable pine needles by the local inhabitants from the forests for making the pine briquettes has also protected the forest from forest fires. The briquettes made of these needles, otherwise a nuisance, is now being used as coal, proving to be a green alternative fuel source. Biogas installed as project intervention have been an easy alternative of fuel in project area. For the women totally dependent on fuel wood, it comes as a blessing. लकड़ी की पहले बहुत परेशानी थी। जंगल में लकड़ियाँ नहीं मिलती थी, दूर दूर जाते थे, वहाँ से लकड़ियाँ लाते थे तो हमें बहुत परेशानी होती थी उससे। अब जब से गोबर गैस जो वो किया है तब से हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। पहले धुआं से बर्तन भी गंदे हो जाते थे
और आँखों में भी बहुत वो होती थी, धुआं लगने से बहुत परेशान हो जाते थे। दिन का जब खाना बनाते थे तो बहुत धुआं लगता था। अब हमें बहुत टाइम मिलता है कि हम बच्चों की देखभाल भी कर सकते हैं, उनकी साफ सफाई के उससे भी देख लेते हैं, नहीं तो हमें फुर्सत नहीं मिलती थी पहले। Biogas plants have not only reduced the pressure for fuel on forest, but have also ensured full utilization of cow dung. Slurry, the byproduct of biogas plant, is being used as an excellent manure in fields. कि हमें बहुत फायदे मिले सर, और एक तो हमें यहाँ पे जैसे गोबर डालने के लिए जगह वो करनी पड़ती थी, अब हम गोबर उठाते हैं सीधे, उसमें जो लकड़ी पतली है उसमें डाल देते हैं, उसके बाद वो गड्ढे में चले जाता है गोबर और उसकी बढ़िया खाद बन जाती है। Water mills have been an important part of life for people of hills for ages. The project has facilitated upgradation of these traditional water mills by convergence with Uttarakhand Renewable Energy Development Authority. This has facilitated availability of quality flour at cheaper rate on one hand, while access to power generation at local level on the other. परियोजना के सहयोग से हमें दी गई, और नई चक्की में एक सुविधा हमें लाइट की मिली और दूसरी सुविधा जो है पिसाई की मिली। और जो रात में हमें दिक्कतें आती थी, रात में हमें जो पुरानी चक्की में है आटा जो है मतलब भरना पड़ता था थैलों में, इतनी हमें सुविधा मिली है इस चक्की में कि हमें भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पट्टे को बांध देते हैं और उसमें लगा देते हैं और आराम से बैठे रहते हैं। हम जो पुराने अपने रीति रिवाज के अनुसार भाग कहते हैं हिस्सा, तो हिस्सा इस नाली से 4 नाली में, इस जो छोटी नाली है इस नाली से हम एक नाली निकालते हैं, तो हमें पिसाई इतनी आ जाती है कि हमें जो है हमारा अपना परिवार जो है बहुत बढ़िया तरीके से पल जाता है, चल जाता है। Solar energy is another alternative for reducing the pressure on the forest for fuel. परियोजना में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के मामले में भी जो है बहुत कार्य हुआ है। इसमें मुख्यतः उरेडा से जो है हमारा कन्वर्जेंस हुआ है, और जहाँ पे हमने सोलर लालटेन में, इवन स्ट्रीट लाइट में उरेडा की सहायता ली है। Solar cookers provided by the project are proving to be anchors for the chores of the inhabitants of these remote areas. Besides giving light to the villagers during the night, solar street lights at public places are also providing protection from wild animals. Generally, frequent power cuts are a tough challenge to the studies and homework of the children of these remote areas. Under such conditions, solar lanterns provided by the project came as a relief for them. ये जो ग्राम्या के द्वारा गांव में, पहाड़ के गांव में विशेषकर जो ये सोलर लालटेन दी गई है, इससे बड़ी सुविधा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बिजली बार बार कट हो जाती है 1-1, 2-2 घंटे के लिए, और जिससे बच्चों की पढ़ाई में और या खाना बनाने में या अन्य कामों में के लिए हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब जब से ये लालटेन मिली है तो बड़ी सहूलियत हो रही है बच्चों के पढ़ने के लिए भी और हमारे अन्य कार्य करने के लिए भी रात। These works for natural resource management have been successful in giving shape to the perception of participatory watershed development in this region. And the future of these natural resources will take shape only from the hands of the people using them. जंगलों में बचा बेरा पानी की होली बहारा, ऊ झरन घर घर वाला जाता वाला तालाबा, वृक्षारोपण करानु
यो बुद्धि महाना जंगलों के उस बनल जमेर रामा वृक्षारोपण करनु यो बुद्धि महाना।